Good morning, students. A very warm welcome in our new session of class 4th. I congratulate to all of you for promoting a new class. And how are you? Hope you all are good at your home. So now let's start the class. But before starting the class, I make you understand that in English syllabus we have two books. In English syllabus we have two books. The first is the Focus, a complete English course. That is, this are English textbooks. The first book is our English textbooks, and another is the Grammar B. That is the grammar book. In English syllabus, we have two books: the textbooks and the grammar book. The textbooks it's called English first, and the grammar is called English second. Okay, understood this? So we start from our textbooks that we say English first. So just take out your English first. This one. You have to take out this one and open it from the page number 3rd. Okay, we have the first Butterfly Laughter. That is the first poem before the first chapter. That is not our first chapter, but before the first chapter we have a poem Butterfly Laughter. So everybody check out the page number 3rd. First we will recite this poem, then I will explain you. Okay, so the butterfly laughter. In the middle of our polished plates there was a blue butterfly painted, and each morning we tried who should reach the butterfly first. In the middle of our porridge plate there was a blue butterfly painted, and each morning we tried who should reach the butterfly first. Then the grandmother said, "Do not eat the poor butterfly that made us laugh." Always she said it, and always it started us laughing. It seemed such a sweet little joke. I was certain that one fine morning the butterfly would fly out of our plates, laughing the teeniest laugh in the world, and perch on the grandmother's lap. So in the present poem, The Butterfly Laughter, it is written by the Catherine Mansfield. Who is the poet of this? The Catherine Mansfield. And it is a very beautiful poem. It is written in a joke style. Start with in the middle of our porridge plate. So first of all, look the difficult words. Here we have the underlined words. Porridge plates. What is the meaning of porridge? Porridge is a solid liquid of a food item. That's we call the, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं दलिया. The thick soft food made by boiling oats in milk or water. That's called daliya. Okay. And another is one fine morning. One fine means one morning. One good morning. The teeniest. Teeniest मतलब या tiniest. Tiniest means tiniest and smallest. So let's start the poem. In the middle of our porridge plates, in the center of our porridge plates. R means the whole poem is about the talking between the children and the grandmother. They were talking on the dining table. In the middle of our porridge plates, the one boy says, in the center of our porridge plates, so उनकी जो porridge plates है, porridge plates means जिस plate में porridge serve हुआ है, there was a blue butterfly painted. वो plate कैसी है? It was the painted, a blue butterfly. उस plate के ऊपर क्या paint हुआ है? एक blue color की butterfly painted है. तो here we have the scene of a family. The family was having their breakfast and the plate जिसमें वो उनका porridge serve हुआ है. There is a design of a butterfly.
painted. And each morning we tried who should reach the butterfly first. और each morning means every morning, हर morning में we tried. Here we means we कौन है यहाँ पर? We the children. आप पिक्चर में देख सकते हैं. Here the all children are sitting together and taking their breakfast, and that is the picture of a plate. प्लेट्स पे देखिए आप, येलो कलर की प्लेट्स है, उस पर ब्लू बटरफ्लाई बने हुए हैं, उस पर पेंट हुआ हुआ. इट मीन्स दैट बटरफ्लाई इज नॉट अ लिविंग थिंग, देयर इज अ बटरफ्लाई इज अ नॉन लिविंग एंड दैट इज अ पेंटिंग ऑन ए प्लेट. ओके, so that is a conversation between the grandmother and the children who are taking their breakfast. So एंड ईच मॉर्निंग वी ट्राइड, और हर मॉर्निंग में हम ये ट्राई करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं हु शुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट, कि बटरफ्लाई के पास फर्स्ट नंबर पे कौन पहुँचेगा. इस लाइन से आप क्या समझते हो? देयर इज़ ए कॉम्पिटिशन बिटवीन द चिल्ड्रन हु फिनिश देयर ब्रेकफास्ट फर्स्ट. यहाँ बच्चों के बीच में क्या हुआ है? एक कंपटीशन लगा होता है, बिकॉज ऑल वर आर हंग्री इन द मॉर्निंग. सो वो क्या आपस में क्या कंपटीशन रखते हैं कि कौन सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है. और जब वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे, जब वो अपना पॉरिज फिनिश करेंगे, तभी वो कहाँ पहुँच पाएंगे? बटरफ्लाई के पास. इट मीन्स जब जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स में आप देखिए है यहाँ पे सर्व हुआ है पॉरिज, तो जो हमारी जो बटरफ्लाई है, जो पेंटेड है, वो हाइड हो गई है, वो छुप गई है, दिखाई नहीं दे रही है. और जब वो अपना जो ब्रेकफास्ट उसको फिनिश कर लेंगे, जब उनका जो पॉरिज है जो फिनिश हो जाएगा, देन जो बटरफ्लाई है वो दिखाई देने लगेगी. इट मीन्स दैट देयर इज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन द चिल्ड्रन हु फिनिश देयर ब्रेकफास्ट फर्स्ट एंड हु शुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट. ओके. Then the grandmother said, "Do not eat the poor butterfly that made us laugh." और जब बच्चे इस तरह की बात करते होते हैं आपस में कि कौन बटरफ्लाई के पास पहले पहुंचता है, तो ग्रैंडमदर जो है वो कमेंट करती हैं एज ए जॉक. क्या बोलती हैं? द ग्रैंडमदर कमेंटेड एज ए जॉक, "डू नॉट ईट पुअर बटरफ्लाई एंड दैट मेड अस लाफ." जब ग्रैंडमदर ने उन बच्चों से कहा कि कहीं आप लोग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के चक्कर में उस बेचारी उस पुअर बटरफ्लाई को मत खा जाना. ये सुनकर सभी बच्चे जो थे वो लाफ करने लगे, बिकॉज जो बटरफ्लाई वो रियल बटरफ्लाई नहीं है, वो तो क्या एक पेंटिंग है. तो सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से लाफिंग करने लगे. एंड ऑलवेज शी सैड इट, और जो उनकी ग्रैंड मदर है वो हमेशा ऐसे ही करती थी. ऑलवेज मीन्स डेट कि ये जो इनकी कन्वर्सेशन है वो डेली का कन्वर्सेशन था. जब भी वो अपने डाइनिंग टेबल पर जब भी अपना ब्रेकफास्ट या लंच जो भी वो लेते थे, तो उनमें इस तरह का कन्वर्सेशन होता था कि कौन अपना जो लंच है, अपना ब्रेकफास्ट है, अपना पॉरिज है, कौन सबसे पहले फिनिश करता है. तो वो क्या कॉम्पिटिशन रखते थे कि हु शुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट. इट मीन्स हु विल कंप्लीट देयर ब्रेकफास्ट फर्स्ट. So always the grandmother commented the same line, "Do not eat the poor butterfly," and it started us laughing. और हमेशा ये जो सेंटेंस था उनका सभी बच्चों को क्या करता था? हंसाता था एज ए जॉक. इट सीम सच ए स्वीट लिटिल जॉक, और ये बहुत ही स्वीट लिटिल जॉक लगता था. आई वॉज सर्टेन डेट, उन्हीं में से एक बॉय है वो कह रहा है, उन्हीं में से एक चाइल्ड है वो कह रहा है कि आई वॉज सर्टेन दैट वन फाइन मॉर्निंग, आई वॉज श्योर अबाउट दैट, कि एक दिन एक मॉर्निंग ऐसा आएगा, द बटरफ्लाई वुड फ्लाई आउट ऑफ आवर प्लेट्स, कि शी वुड फ्लाई आउट ऑफ आवर प्लेट्स, वो हमारी प्लेट से बाहर आकर फ्लाई करेगी. लाफिंग द टीनियस्ट लाफ इन द वर्ल्ड, और कैसे लाफिंग करेगी? टीनियस्ट लाफिंग. टीनियस्ट क्योंकि वो जो बटरफ्लाई है वो खुद ही टाइनी है, तो उसकी स्माइल भी क्या होगी? टाइनियस्ट होगी, टीनियस्ट होगी, स्मॉल सी प्यारी सी होगी. सो इन द वर्ड के अंदर सबसे प्यारी सी जो स्माइल, छोटी सी स्माइल, अच्छे से स्माइल करते वो, एंड पर्च ऑन द ग्रैंड मदर्स लैप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्च? पर्च यानी बैठ जाएगी, सिट, टू सिट ऑन द ग्रैंड मदर्स लैप, और वो ग्रैंड मदर की लैप पर बैठ जाएगी. व्हाट द बॉय सेइंग दैट, बॉय कहता है इसमें कि वन फाइन मॉर्निंग, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट, कि वन morning the butterfly would fly out for my plates and laughing in the world and sit on the grandmother's lap.
अब जो बटरफ्लाई है वो ग्रैंड मदर के लैप पर ही क्यों बैठेगी? वाई द बटरफ्लाई सिट ओनली अ ग्रैंड मदर्स लैप? बिकॉज ग्रैंड मदर्स ऑलवेज फेवर हर, क्योंकि ग्रैंड मदर जो होती है उसकी हमेशा फेवर करती थी। कैसा फेवर करती थी? जब बच्चे बोलते थे हु वॉज द फर्स्ट टू रीच द बटरफ्लाई, देन द ग्रैंड मदर सेज डू नॉट ईट पुअर बटरफ्लाई, डू नॉट ईट द पुअर बटरफ्लाई। वो किस तरीके का सेंटेंस बोलते हैं कि उस बेचारी बटरफ्लाई को मत खा जाना। तो ये जो सेंटेंस जो लाफिंग कराता था सबको, इस बात से क्या लगता था कि जो ग्रैंड मदर है वो उसका फेवर करती हैं बटरफ्लाई का। तो जो बटरफ्लाई बाहर आएगी तो वो सबसे पहले कहाँ किसके लेप पर जाकर बैठेगी? ग्रैंड मदर की, बिकॉज ग्रैंड मदर हमेशा उसका फेवर करती थी। अंडरस्टूड दिस? होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। इन द मिडिल ऑफ आवर porridge plate there was a blue butterfly painted, and each morning we tried who should reach the butterfly first. Then the grandmother said, do not eat the poor butterfly. That made us a laugh. So in the poem, in the first stanza, the poet says that in the center of the porridge plates there was a blue butterfly painted. जो डिज़ाइन बना हुआ है प्लेट के ऊपर वो काहे का बना हुआ है? बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई प्लेट पर पेंट हुई हुई है। एंड ईच मॉर्निंग वी ट्राइड हु शुड रीच द बटरफ्लाई फर्स्ट। जो चिल्ड्रन हैं वो डेली ईच मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग वो ट्राई करते हैं कि सबसे पहले बटरफ्लाई के पास कौन पहुंचेगा। ओके, सो द फैमिली वॉज हैविंग देयर लंच, हैविंग देयर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, एंड द चिल्ड्रन have a competition between the children who finish their breakfast first. And the grandmother commented as a joke, do not eat the poor butterfly. So the grandmother commented as a joke, do not eat the poor butterfly, and everybody were laughing. To listen this beautiful, this is a sweet joke. ओके, इट सीम सच अ स्वीट लिटिल जॉक। ये सभी को बहुत ही स्वीट जॉक लगता था, एंड एवरीबडी was laughing to listen this joke. I was certain that one fine morning the butterfly would fly out of our plates, laughing the teeniest laugh in the world, and perch on the grandmother's lap. और उन्हीं में से एक बॉय क्या कहता है? आई वॉज सर्टेन डेट, आई वॉज श्योर अबाउट दैट कि वन फाइन मॉर्निंग, वन मॉर्निंग द बटरफ्लाई वुड कम आउट फ्रॉम आवर प्लेट्स एंड लाफिंग द टीनियस्ट लाफ इन द वर्ल्ड, और बहुत ही टीनियस्ट लाफिंग करते हुए दे शी विल सिट ऑन द ग्रैंड मदर्स लैप। और वो जो बटरफ्लाई है वो हमारे प्लेट्स में से बाहर निकल के फ्लाई करते हुए, लाफिंग करते हुए, टाइनियस्ट लाफिंग करते हुए वो कहाँ जाकर बैठेगी? द पर्च ऑन द ग्रैंड मदर्स लैप, सिट ऑन द ग्रैंड मदर्स लैप, एंड शी सिट्स ऑन द ग्रैंड मदर्स लैप बिकॉज ग्रैंड मदर्स ऑलवेज फेवर हर। वो हमेशा उसको फेवर करती थी, उसको सेव करती थी टू ईट बाय द चिल्ड्रन. So that is the very funniest poem and the little joke the poet make here. So you will revise it, learn it. Then in our next class we will do our book activity. There are some book activities we have to do in our next class. Till then, take care, and if you have any problem you will consult me and I will explain you again in our doubt classes. So till then, take care.